Hello students, welcome to the next lecture on the partial differential equation. Today I will explain you how you can find the particular integral of the homogeneous linear partial differential equation. Myself Dr. Harish Garg. You can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the partial differential equation. As you can see, the last lecture was on the auxiliary equations, complementary functions and homogeneous linear partial differential equations. In the today's lecture, we will learn how we can find the particular integral of the homogeneous linear partial differential equations. Make sure students, how we can find the complementary functions that we already explained you in our last two lectures, complementary functions and the homogeneous linear partial differential equations. So we will learn how we can find the particular integral such that the right hand side function phi is my non-zero. As I mentioned you in our previous lectures, particular integral is applicable only whenever phi of x comma y is my non-zero. Whenever phi of xy is my 0, then the particular integral is also 0. Now, this is the same way, that is a particular integral is found only when phi of x comma y is my non-zero. I will discretize how we can find the particular integral into the 6 different forms. Type 1, that is only for the exponentials. Type 2 is a cosine and the sine. Type 3 is a polynomial form. Type 4 is a polynomial but the power is more than 1. Type 5 is a special function like logarithm, tan, sine inverse and so on. And the last one is the mixed form. I will explain you the each type in the different videos, but in this video I will explain you the general method which can applicable to the each problem. फाइन, एक ऐसा मेथड बताऊंगा इस लेक्चर में जो सभी के सभी टाइप्स के ऊपर आपका एप्लीकेबल हो जाएगा. बट अगर आप 15 प्लस न्यूमेरिकल एग्जांपल चाहते हो हर एक टॉपिक के ऊपर, then you can see my different videos. After this lecture I will upload the type 1 video, type 2, type 3 and so on. But make sure students, whenever your target is to find the particular integrals, the equation ax plus b, that means the degree of the x and y must be 1. It can never be of the form 3x square minus y, x square plus 3y, x into y, x square and so on. ऐसा नहीं होना चाहिए, डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए. एंड सेकेंड इज द टर्म, जो भी हम मेथड करने जा रहे हैं, दैट मस्ट बी फॉर द होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजीनियस लीनियर्स मीन क्या बताया था मैंने आपको, जिसकी डिग्री सेम हो. इसका डिग्री कितनी है 2, इन दोनों की कंबाइन करके कितनी हो जाएगी 2, दैट इज ऑल्सो 2. तो यस, जो मैं आज आपको मेथड बताऊंगा इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा. सिमिलरली फॉर द सेकेंड 3 and 3, yes it is also applicable. यहाँ डिग्री 2 है लेकिन यहाँ 1 हो गई तो अलग अलग होगी ना डिग्री. so that is called as the non homogeneous linear partial differential equation. so आज का मेथड जो है वो लास्ट की 2 एग्जांपल्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा. फाइन, सबसे पहले एग्जामिनेशन में यही आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा मेथड कब लगेगा. so whenever the order of the each term is same, then you can apply the today's lecture. Otherwise we can learn the concept of the non-homogeneous linear partial differential equations. Now, as I mentioned you, today's lecture is a general method. Any function is of the form ax plus by. As you can see, any type, चाहे वो टाइप नंबर 1 है चाहे वो टाइप नंबर 6 है. फाइन, इनमें से कोई भी एक टाइप उठा लो, उन सभी टाइप्स के प्रॉब्लम आज आप इस जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हो. लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको हर टाइप के ऊपर अलग अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए. So how you can find the particular integral? The particular integral is 1 over operator into phi of xy. Now you have the two different cases. Fine. The first case is when you substitute capital D to be the A and D prime to be the B, such that f of AB, जो ये denominator f of AB हो गया, that it may not be 0 or it may be 0. फाइन, तो हम दो केस को डिस्कस करेंगे. पहला केस जब ये नॉन जीरो है, सेकंड केस जब ये जीरो है. तो whenever it's a non-zero, then
यू कैन फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपका फंक्शन था ना g ऑफ ax प्लस बी वाई, तो इसमें क्या करेंगे हम, वी कैन सब्सटीट्यूट कैपिटल डी टू बी द ए, कहीं पे भी पूरी पार्शियल डिफरेंशियल में कैपिटल डी लिखा वहां पे ए फिल कर देना है, कैपिटल डी डैश को बी फिल कर देना है, एंड इस v को आप ए एक्स प्लस बी वाई को आपने v का नाम ले लेना है, तो ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा 1 ओवर एफ ऑफ ए बी, और जितना भी इसका ऑर्डर होगा उतने टाइम्स आपकी ये इंटीग्रेशन हो जाएगी. यू कैन टेक v इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड कैपिटल डी इज माई ए, कैपिटल डी डैश इज माई बी. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा. ऑन दी अदर हैंड whenever f of ab is my 0, तब इसका मतलब ये आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, देन वी कैन राइट द फंक्शन इज इन द फैक्टर फॉर्म. उसके बाद फॉर्मूला बन जाएगा x की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ द d पावर n एंड सो ऑन. पावर n मतलब जितना इसकी पावर हो. फाइन, इसको हम बोल देते हैं केस ऑफ फेलियर. मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप एग्जामिनेशन में पहले पता कर सकते हो कि केस ऑफ फेलियर होगा कि नहीं होगा. वो कैसे? सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे, अगर उसके अंदर ए एक्स प्लस बी या सेम टर्म प्रेजेंट हुई तो केस ऑफ फेलियर ऑलवेज होगा. अगर ए एक्स प्लस बी प्रेजेंट नहीं है तो केस ऑफ फेलियर कभी नहीं होगा. फाइन, आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स. तो इस लेक्चर में मैं आपको सभी 6 टाइप का वन एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ. फाइन, और डिटेल लेक्चर्स हर टाइप का मैं आपको सेपरेट वीडियो में अप्लाई करता हूँ. लाइक यू कैन सी the right hand side is exponential, so that is the case of the type number 1. तो मैं इसका पहला एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ. फाइन, so what is the meaning of the general solution? Your general solution will be u is equal to complementary functions plus particular integral. Fine, so can you find the complementary functions? How you can find the complementary function? You have to write the auxiliary equations. I can substitute capital D is my m, कैपिटल डी डैश इज 1, तो ये इक्वेशन क्या बन गया आपका, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द m? इफ यू राइट द फैक्टर इट विल बी m प्लस 1 होल स्क्वायर, m will be -1 -1. Clear? Therefore your complementary function will be f1, क्या होता था फॉर्मूला आपके पास, fi y plus mix, where mi is the roots of the auxiliary equations, y minus mx plus f2 y minus. तो आप देखो इसका ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर इज अगेन 2. फाइन, तो आपके 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स आ गए और फंक्शंस आ गए. नाउ लुक एट दी पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 ओवर फंक्शंस इनटू e ऑफ 2x plus 3y. तो सबसे पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन करके देख लेते हैं. अब आप देखो ये केस ऑफ फेलियर बनेगा कि नहीं. क्या ये 2x plus 3y इसके अंदर लिखा हुआ है कहीं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में? नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब केस ऑफ फेलियर नहीं है. यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू a, कोफिशिएंट ऑफ द x, d प्राइम इज माई b. तो आप यहाँ पे फिल कर दो, तो ये कितना हो गया, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 इंटू डी डैश 6 प्लस इंटू 9. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना है 2, सो डबल इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर v dv इंटू d. इज इट ओके? आपने v को क्या ले लेना है, 2x प्लस 3y, तो ये e की पावर v हो गया. डायरेक्टली सब्सटीट्यूट द वैल्यू, ऑर्डर इज माई 2, आपके 2 है ना f1 f2. नाउ यू कैन इंटीग्रेट दैम, तो ये कितना हो गया 1 ओवर 25, e रेज टू पावर v की 2 बार इंटीग्रेशन, तो सेम ही रह जाएगा. आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द v, 2x प्लस 3y divided by 25 is the particular integral. This is my complementary function, that is my particular integral. I can add them and you can get as the general solution of partial differential equation. Look at the type 2 where the right hand side is my sine, cosine and so on. तो मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको सॉल्व कर देता हूँ. फाइन, टाइप 1 में आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा 15 एग्जांपल के साथ. चलिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं. इसकी क्या होगी, m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m is equal to 0. Clear? I can take an m as a common, that will be m square minus 4m plus 4 is equal to 0. So factor क्या बन गए इसके, minus of 2 minus of 2. So what are my roots?
रूट्स आर माई 0, 2 एंड 2। तो आपके पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग f1 y प्लस 0x प्लस f2 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। नाउ सिंस द 2 and 2 are repeating, so you can multiply with the x, f3 y plus 2x. For more detail how we can write the complementary function, you must watch about my lecture examples of the homogeneous and the complementary functions. इसका ऑर्डर कितना आपका 3, so you have a 3 arbitrary functions. How we can write the particular integrals? I can write either you can write as a functions m cube, और अगर आपने यहाँ पे फैक्टर बना लिए थे ना, ये इसके रूट्स आ गए ना, इस रूट से आप क्या लिख सकते हो, d माइनस 0 फाइन d माइनस ऑफ 2d प्राइम एंड d माइनस 2d प्राइम फाइन। तो वो मैंने आपका यहाँ लिख दिया। सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये केस ऑफ फेलियर बनेगा। 3x प्लस 2y क्या इसके अंदर है कहीं पे, नहीं है, तो केस ऑफ फेलियर नहीं होगा। यू कैन टेक v इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू, d is my 3, 2 into d prime is my 2, that's a 4 फाइन। ऑर्डर कितना है इसका 3, ट्रिपल इंटीग्रेशन 2 टाइम्स साइन ऑफ v dv dv एंड dv, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 2 आउटसाइड हो गया, 2/3। नाउ यू कैन इंटीग्रेट द साइन एज ए 3 टाइम्स। पहली बारी साइन का करोगे माइनस कॉस v, सेकेंड टाइम करोगे माइनस ऑफ साइन v, थर्ड टाइम करोगे माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ v फाइन। नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द v, 3x plus 2y is the right answer of the problem. You can add complementary functions plus particular integral is the right answer of the problem. Look at another one, that's a tan logarithm, and find this is the type 5. So I will explain you the one example. Find same method के साथ solve करेंगे हर प्रॉब्लम को। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, इससे रूट्स क्या आ जाएंगे, m minus 1 m minus 1, so m will be 1 and 1, तो इसका क्या बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो सिंस दे आर द रिपीटिंग रूट्स, सो y plus mx, because they are repeating roots I can write as a x f2 y plus fx. As the degree is my 2, so you have the 2 arbitrary functions. Write the particular integral. Now you can see whether the case of failure occur or not. x plus y, yes, you can see दोनों में से कहीं एक पे प्रेजेंट हो तो yes the case of failure occurs. फाइन। अब आप देखो x प्लस वाई कितनी बार लिखा है, यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, तो मैं इस वाली चीज को, इसके हमने फैक्टर बनाए थे ना, ये बने थे ना, m is 1 and 1, so I can write as a फाइन, और साथ में आ गया tan of x plus. Now we can see it's a case of failure, so I can use the formula of this kind. तो पावर कितना है n, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, d का कोफिशिएंट कितना है 1 की पावर 2, बाकी आपके पास सेम रह गया tan ऑफ x प्लस 1। इसको ध्यान से लिखना है, ये कोफिशिएंट ऑफ द d होना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो 1 की पावर, ये आपका n होगा, तो कितना हो गया ये आपके पास x square 2 factorial is my 2, x square by 2 tan of x plus y is the particular integral. You can add the complementary functions, you will get the complete solution of the problem. Type 3, you can see whenever the right hand side is my polynomials, y minus 2x, y minus x, all are the degree 1. चलिए इसकी भी एक एग्जांपल कर देता हूं। ऑक्सिलरी इक्वेशंस पहले लिख लेते हैं, क्या होगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, फैक्टर बना लो इसके, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 1m इज इक्वल टू 2, m प्लस 2 m plus 1, so m will be minus of 2 minus of 1, so your complementary function will be f1 y plus mx plus f2 y minus 2x. इसका ऑर्डर भी 2 है आपके पास, फाइन, और 2 ही आपके पास आर्बिट्री फंक्शंस आ गए। मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था ना कंप्लीमेंट्री फंक्शन में कि अगर आपके पास ऑर्डर मान लो यहाँ पे 3 होता, फाइन, तो यहाँ पे 3 f होने चाहिए थे, तो तीसरा f कहाँ से आएगा,
y के साथ एंड सो ऑन, अगर इसका डिग्री 3 होता, लेकिन इस केस में तो 2 है। वो सारी एग्जांपल्स मैंने आपको इन 2 लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी हुई है पहले से। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। फाइन, सबसे पहले चेक करो क्या केस ऑफ फेलियर होगा। x प्लस वाई है इसमें, कहीं कहीं नहीं है। यू कैन डायरेक्टली सब्सटीट्यूट, इसको ax प्लस बी वाई से कंपेयर कर लो। a कितना हो गया 1, b हो गया 1, तो v को आपने क्या ले लेना है ax प्लस बी वाई, दैट इज x प्लस वाई। तो सब्सटीट्यूशन कर दो, कैपिटल D की वैल्यू a, फाइन, d डैश की वैल्यू भी 1, फाइन, और यहाँ पे आ गया v, तो इसका ऑर्डर कितना है ट्वाइस, तो 2 बार इसकी इंटीग्रेशन आप कर दो। तो कितना आ गया इसका आंसर देख लो, 2 + 3 5, 5 + 1 is 6, 2 times integration of the v, first time is v square by 2, second time will be v cube by 6, फाइन। तो दैट विल बी v की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, x plus y cube divided by 36 is the required particular integral of the problem. You can add the complementary functions and the particular integral, you will get the complete solution. Look at the type 4. You can see the right hand side is my polynomials, but the power is 1. Now clearly say which is not the form of ax plus by. क्या इसकी फॉर्म में है? ये नहीं है, प्रोडक्ट है ना। अगर इसकी फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब आप v वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्लियर? तो इसीलिए मैं ये टाइप 4 लास्ट में लिख रहा हूँ। फाइन, मैं एक एग्जांपल कर दे रहा हूँ और बाकी एग्जांपल्स आपको इन सबके सॉल्यूशन टाइप 4 ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल में मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देते हैं। क्या बन जाएगा ये m-1 होल स्क्वायर, सो m विल बी 1 and 1। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन लिख लो बिकॉज दे आर रिपीटिंग। फाइन, चलिए अब आप लिखो इसका पी। अब इसमें एक्स वाई तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आप v नहीं ले सकते। आप यू कैन नेवर टेक v एज एक्स वाई। v आप तभी लोगे वेन एवर इट इज अ लीनियर। फाइन, अब ये आपका लीनियर नहीं है, देन इट्स अगेन द वेरी सिंपल। अब आप क्या करो, इसको 1 बना लो। आप इसमें से d कॉमन ले लो, दैट विल बी डी स्क्वायर। तो बाकी चीज को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। फाइन, समझ गए क्या करने जा रहा हूँ? यस, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने जा रहा हूँ। सो व्हाट इज द सीरीज 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर -1। इसकी सीरीज क्या होती है? अगर ये -1 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो, यही होती है ना सीरीज आपके पास। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, -2। सो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द -2? दैट विल बी 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये कितनी बार एक्सपेंड करोगे? वहां तक करिए जितनी x की पावर, इसकी x की पावर क्या है 1, y की भी 1 है। फाइन, तो सिर्फ एक बार ही एक्सपेंड करिए 1 प्लस d, और ज्यादा सारे एक और लिख लो, आपको पता लग जाएगा वो 0 हो जाएगा अपने आप ही। फाइन, एंड सो विच इज ऑफ 12xy। अब आप इसकी ब्रैकेट खोलते हैं, खोलो ब्रैकेट 12xy प्लस व्हाट इज द d डैश? d डैश इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इसका पार्शियल करो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, 1224x डिवाइडेड बाय कैपिटल D, और d डैश स्क्वायर मतलब ये क्या था, सेकंड डेरिवेटिव। 2 बार डेरिवेटिव करो इसको y के साथ, दैट विल बी 0, तो अगली टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी। 1/d मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा। फाइन, so integration with respect to x, all of you know that what is the capital D? D by d of x, so 1 over capital D क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, 24x का इंटीग्रेशन 24x square by 2, so that will be 12x square। फाइन, दिस इज 12x square। बाहर क्या रह गया 1 by d square, so d square मतलब डबल इंटीग्रेशन, 1/d square है ना, इस क्वांटिटी का आप डबल इंटीग्रेशन कर दो। कितना हो जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट, 12xy प्लस, पहले एक बार करते हैं, इसका कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 6x स्क्वायर वाई, और x क्यूब बाई 3 4x क्यूब, कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। फाइन, अब दोबारा x के साथ कर दो, x क्यूब बाई 3 2x क्यूब y, x4 by 4 is the required particular integral of the problem. Now you have the complementary functions, you have the particular integral, you can add them, you can get the right answer of the problem.
Okay, now you can see that this is a type 1, and if you really want to learn how we can solve these more examples, I will explain you with the help of the 15 plus numerical example of the type 1 in our next lectures. Let me know in the comment box if you are really interested to learn the concepts. I hope you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck students. Happy learning.